السلام علیکم، شاہین ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یورپی یونین نے جو پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کی تھی، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب اجلاس بلایا، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح موقف اپنایا ہے کہ ختم نبوت کے قانون پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ہم انسانی حقوق کے حوالے سے کام کریں گے، لیکن جو قرارداد پاکستان کے خلاف یورپی یونین نے پیش کی، ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ختم نبوت کا جو قانون ہے اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بہت جلد سعودی عرب پہنچنے والے ہیں۔ ان کے اس دورے کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان مل کر بہت سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے۔ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک مذہبی جماعت نے پچھلے ہی دنوں دھرنا دیا۔ اس جماعت نے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، کیونکہ فرانس میں جو خاکے بنانے کا معاملہ تھا وہ بڑا پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں ایک لہر دوڑ گئی تھی اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا۔ پاکستان میں جب یہ احتجاج ہوا، اس دوران بہت ہی صورتحال غمگین ہو چکی تھی۔ ہمارے لوگ جہاں احتجاج کر رہے تھے تو وہیں پر آپ کو معلوم ہے پڑوسی ملک بھارت بھی پاکستان میں سول وار کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد میں امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے یورپ والوں کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ یہ خاکوں والا جو معاملہ ہے اس سے تمام امت مسلمہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اب ایسی صورتحال میں اس کے بعد یورپی یونین میں ایک قرارداد پیش ہوئی، اور اس قرارداد میں اقلیتوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس قرارداد کو منظور ہونے کے بعد اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر مسلم ممالک کے سفیروں کو اپنے ہاں مدعو کیا اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کو کم از کم اس معاملے پر ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور OIC کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو خاص طور پر رول پلے کرنا چاہیے اس معاملے پر۔ اور جو مسلم ممالک کے سفیر ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس بات کو سراہا اور ان کے کیے جانے والی بات چیت کو غور سے بھی سنا، اور انہوں نے یقین دلایا کہ اس پر ہم اپنی حکومتوں کو یعنی اپنے ملک کی حکومتوں کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ختم نبوت کا جو قانون ہے اس پر تو کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کہی تھی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا تھا، آئیے میں آپ کو پہلے وہ سنواتا ہوں۔ وہ جو TLP کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہیں کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ TLP کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں، وہ یہ ہے۔ TLP یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ ان کی بے حرمتی کی جائے، ہمارا بھی وہی مقصد ہے۔ تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1979 کے اندر، نہیں 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی
शहादतें भी हुई। उसके बाद आप उठा के देख लें कि हर थोड़े सालों के बाद कोई ना कोई मगरब के किसी मुल्क में उनकी शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, कहीं बाहर रिएक्शन भी होता है, या हमारे मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं, लेकिन ये हर थोड़े सालों के बाद यही सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमने अभी तक कोई फ़र्क पड़ा इस अप्रोच से? यही टीएलपी कर रही है। ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मुजाहरे करेंगे हम, और किए हैं उन्होंने, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, पहले भी किए हैं, कि अगर हम एक्शन ना लें। अब क्या मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे। वहाँ उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। तीसरी चीज, अब ये मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है, हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हर थोड़े सालों के बाद हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये अब सुने मेरी अप्रोच क्या है। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, मगरिब को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, मेरी बड़ी ज़िंदगी गुजरी है वहाँ, मैं उनकी सोच को जानता हूँ। देखिए सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए, जो हमने की है, और मैं अभी बताता हूँ हमने क्या क्या कोशिश की है। अच्छा मैं ये पहले बता दूँ, सबसे पहले जून 2019 में 14वीं जो समिट थी OIC की, वो पहली दफ़ा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, और मैंने ये बात किया कि जो मगरिब के अंदर हमारे प्यारे नबी की बेहुरमती की जाती है, कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए, कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। दूसरा मैंने फिर जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया
दोनों चीज़ें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है? इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत, और उस नफ़रत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये एक ही चीज़ इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की और मैंने कहा कि ये किस तरह 1.25 अरब लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको ख़त लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ और जिसके ऊपर ये TLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। सुना आपने। इस खिताब के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर अमली इक़दामात करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो इस मामले का कोई हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि ज़रा से यहूदी अगर मिलकर होलोकास्ट को गैर कानूनी करार दे सकते हैं तो हम दुनिया भर के 1.25 अरब मुसलमान मिलकर यूरोप को एक बड़ा पैगाम क्यों नहीं दे सकते? इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? ताहम आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा में भी जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर की थी तो इस मामले को उन्होंने बयान किया था और कहा था कि इससे मुसलमानों के दिल दुखते हैं। और मैं इस्लाम फोबिया को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मामलात कम अज़ कम हमारे लिए बहुत दर्दनाक हैं। और जब ये खाकों वाला मामला हुआ तो कई मुस्लिम ममालिक में फ़्रांस की मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया गया था। और अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक मजहबी जमात ने जब धरना दिया था तो उन्होंने कहा जनाब इस सफ़ीर को निकालो, इससे नीचे तो समझौता ही नहीं होगा। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस बात पर कन्विंस किया और समझाया कि अगर हम इस सफ़ीर को निकालते हैं तो हमारे खिलाफ़ बहुत सारा प्रोपेगेंडा होगा। आप हमारे अपने भाई हैं। मैं आपको इस हवाले से यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका सफ़ीर बनकर इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके यूरोप को ये बात समझाऊंगा कि ये मामला जो है इससे कम से कम इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल दुखता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में जहाँ तक इतलात मिल रही हैं वो सऊदी अरब को दावत भी देंगे कि वो अमली तौर पर CPEC में अब शिरकत करे, क्योंकि CPEC एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान को तरक्की की नई राह पर ले जाएगा। ऐसे में बहुत सारे ममालिक इसमें शिरकत भी करेंगे। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब इस हवाले से अब सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरब जाने लगे हैं। वहाँ पर वो सऊदी अरब को इस बात पर कन्विंस करेंगे कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हम रेडी हैं, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान सऊदी अरब का करीबी साथी रहा है, वो चाहे किसी भी मामले में हो। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। अगर सऊदी अरब तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा या सिक्योरिटी मांगेगा तो इस हवाले से भी उनकी मदद की जाएगी। ताहम इतलात के मुताबिक अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर 7 मई को सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। और अब आपको मालूम है दूसरी जानब अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकल रही है। खित्ते में एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है। 20 साल के बाद आपको मालूम है अमेरिका की फ़ौज जाने पर अब मजबूर हुई है। ताहम ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहमियत का हामिल हो गया। अब ये बात तो सच है, ताहम ये बात तो पक्की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब उम्मत मुस्लिमा को भी इकट्ठा करेंगे और वो यूरोप को इस हवाले से एक बड़ा पैगाम भी देंगे। और ये बात तो अब इमरान खान साहब ने तय कर दी है कि ख़त्म नबूवत पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और ना ही किसी किस्म के कानून से छेड़छाड़ की जाएगी। आप जितनी मर्जी करारदादें पास कर लें
اور यहाँ तक आपको बताऊं कि जब ये इजलास हो रहा था तो वहाँ पर कुछ वुज़रा चाहा भी यूरोप को इस हवाले से जवाब दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें ही मना और कहा कि हुकूमत अपने अंदाज के मुताबिक इस मामले को देख रही है, तमाम वुज़रा बयानबाजी से बाज रहें। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये बात तो तय है कि ख़त्म नबूवत पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये वाज़िया कर दिया। और जब पाकिस्तान में पिछले ही दिनों धरना हो रहा था तो बैरूनी कुव्वतें भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई थी इंतशार फैलाने के लिए। भारत भी पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा। खैर वो मामला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी बसीरत से जल्द अज जल्द हल करवा लिया और पाकिस्तान में बैरूनी कुव्वतों को मज़ीद इंतशार फैलाने से रोक लिया। ताहम नाज़रीन मोहतरम, देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल होता है और यकीनन दुनिया भर की नज़रें अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस दौरे पर होंगी। ताहम नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।